Hi everyone. We will wait for some more time to join others. There are only three people now. ये जल गया ना। ठीक है। I have 7 participants now. 6 people. लाइट मिलेगी तो बिजली आगे नहीं देगा, कहेगा इससे ही चला जो चल रहा है, तो उसकी बिजली काट देगी पीछे, तभी तो आपको आगे लाइट देगा वो। बटन बंद कर दो तो बिजली कट गई। लेकिन जब लाइट आए और तेज हो जाए तो उसे ऑन कर देना, सारा चार्ज हो जाए, चार्ज नहीं होनी वो लगाते फिर। Two more people are joining. Am I audible to the people who are here now, who have joined us? Am I audible? Okay. Sanjay has also joined. We will wait for one more minute. Let others also join, and after that I will start. बार बार नहीं करा दो, खाली कोई दफ्तर तो खाली कपड़े। Okay. I think others will be joining later or whatever. So let me proceed now. Shall I begin? Hello. Yes, ma'am. Okay, so just to introduce myself, my name is Ifat. I just tried connecting with you guys in the morning at 9, the session, scheduled session of ours. Inconvenience is really regretted. I'm really sorry about that. We could not connect in the morning because of my unstable connection of the internet. And many of the participants had joined in the morning and they're not available now. I can see only 8 participants are here now. So no worries, I will just share the document and everything on the group for the notes purpose. To start with, I would want to confirm you guys that I will be taking your financial management, this subject I'm going to teach you guys. And just confirm me, what is your preferred language? Should I be continuing in English or Hindi or mix? How you want me to proceed with the lecture? Mix of it? Okay, fine. Okay, so financial management, this is the code OECCS. You all have got your syllabus and everything with you guys. So out of that syllabus, the first topic of your syllabus is the meaning, scope and the functions of the financial management.
Okay, this is I'm going to cover in this lecture. If possible it is covered by today, then it is great. Otherwise whatever will be pending out of this presentation, वो हम लोग pending जो भी रह जाएगा, we'll be covering it tomorrow in the next lecture. Okay, so if I see, is my screen visible to everybody of you? आप सबको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? ओके फाइन. तो इसमें जो कंटेंट है, यू कैन जस्ट सी द फर्स्ट थिंग इज मीनिंग, nature, and then we'll be going to scope. So for now in this PPT I'll be covering the meaning. What exactly is financial management? See, financial management, why this subject? Whenever we start learning anything, हम कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो we should be asking ourselves कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. डू वी रियली नीड टू स्टडी दिस? ऑब्वियसली इफ इट इज पार्ट ऑफ योर कोर्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, तभी आप लोगों को ये पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड कि इंजीनियर्स शुड आल्सो बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो दिस सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज गॉट टू वर्ड्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि फाइनेंस क्या है और मैनेजमेंट क्या है. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, फाइनेंस मींस द फंड्स, पैसा. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा है, कहाँ से तो पैसा आता है, कहाँ पे पैसा जाता है, कैसे यूज होगा, कैसे उस फंड्स को हम मैनेज करेंगे, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं. The new joiners who have joined us now, I just have to introduce you that I'm going to take this subject of yours. My name is Iffat Ara and I'm going to conduct the subject for you all. Okay, कुछ भी issues आपको है, कोई भी आपको queries है, you can interrupt in between. आप बीच में ही मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मे बी टुडे, और अगर आज पॉसिबल नहीं होता तो मे बी बाय टुमारो, आई विल बी शेयरिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट ऑफ दिस. पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी, तो आप वो अपने पास सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट. यू कैन टेक प्रिंट्स और व्हाटएवर फॉर योर रेफरेंस पर्पस इन फ्यूचर टू लर्न एंड टू डॉक्यूमेंट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे दूंगी. इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन, बट अगर ये डॉक्यूमेंट में से आपको कुछ राइट डाउन करना है तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगी, उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी. यू जस्ट अंडरस्टैंड, देखो कि क्या लिखा हुआ है और सुन के समझने की कोशिश करो क्या है. कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तभी आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, आप अपने आप को चाहो तो म्यूट करके रख सकते हो. जब कुछ आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अपने आप को अनम्यूट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला कि हम लोग मैनेज कैसे करेंगे इफ वी आर इन अ बिजनेस और इफ वी आर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. आप कभी भी जब आफ्टर योर डिग्री यू विल बी गोइंग समवेयर, तो फाइनेंशियल जो फाइनेंस है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसे मैनेज होता है इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेल्स अस. फाइनेंशियल, एक फाइनेंस मैनेजर भी होता है हु इज हेडिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो मीनिंग अभी फाइनेंशियल इज रिलेटेड टू फंड्स or the finance, the capital of the company, and management means कि उसको कैसे मैनेज करें. मैनेजमेंट में 4 एक्टिविटीज आती हैं कि प्लानिंग, हम कैसे प्लान कर रहे हैं उसको, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो जो भी एक्टिविटीज फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जहां जहां पर भी पैसे की जरूरत है हमको, वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो जाती है किसी भी एक कंपनी की, किसी भी एक एंटरप्राइज की, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की. तो उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस एंटरप्राइज में फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या क्या होंगी और कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए कितना फंड चाहिए, हम उसको प्रॉपर प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रॉपर कंट्रोल भी रखेंगे कि ऐसा नहीं हमने किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कुछ फंड अरेंज पहले प्लान किया था कि इतना लगाएंगे और बाद में हम कुछ ज्यादा लगा रहे हैं या कम लगा रहे हैं कुछ है. दिस ऑल इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. ये कंप्लीट टास्क, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज का, किसी भी कंपनीज में जो भी काम हो रहे हैं पैसे से रिलेटेड, उन सबको मैनेज करना, इन सब चारों कामों को मिलाकर हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं उसको. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दी बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ दी financial activities only, the activities which are related to funds. It means applying general management. मैनेजमेंट बेसिकली तो यही 4-5 चीजें होती हैं. अगर हम सिर्फ मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें स्टाफिंग और होता है,
लेकिन हम फाइनेंस मैनेजमेंट में जब बात करें तो उसमें स्टाफिंग नहीं होता, सिर्फ ये 4 चीजें रहती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंस की एक्टिविटीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस है, मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोसेस है, जो कि कंसर्न्ड है किसका, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे पास पैसा कहाँ से आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में, एक जनरल लैंग्वेज में ही सोचें कि अगर आप किसी पर्सन को एक कंपनी स्टार्ट करनी है या एक कंपनी में हम ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो उस कंपनी को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। सैलरीज हैं, सबकी सैलरीज देनी है सभी स्टाफ की, अदरवाइज बहुत सारे खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए। तो वो सारी एक्टिविटीज जहां जहां पैसा लगता है आर ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इनको कंट्रोल करना पड़ता है। पैसा हम मतलब विदाउट अप्रूवल्स या विदाउट प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, हम पैसा ऐसे ही कहीं पर भी किसी भी चीज में डाल नहीं देते हैं। और पहले तो डालने से पहले आएगा कि वो पैसा आएगा कहाँ से। पहले तो फंड्स हमारे पास आएंगे तभी हम आगे स्पेंड करेंगे ना। सो पहले क्या होता था, इन द इनिशियल इयर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज कंसर्न्ड ओनली विद द कलेक्शन ऑफ द फंड्स, कि पैसा आएगा कहाँ से। मतलब फॉर एग्जाम्पल देर आर टू अप्रोचेस बेसिकली, वन इज मॉडर्न, एक पुरानी अप्रोच है, द एंशिएंट अप्रोच, ये हम आप बाद में पढ़ेंगे अभी आफ्टर द मीनिंग ऑफ दिस, कि उन अप्रोचेस के अकॉर्डिंग पहले फाइनेंस मैनेजर का काम सिर्फ एक कंपनी में ही होता था कि उसको हम बोलते थे कि हमें इतना पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से लाएगा, सिर्फ उसका इतना ही काम होता था कि वो प्रोक्योर करके लेके आ जाए, पैसा मार्केट से लेके आ जाए, बैंक से लेके आ जाए, शेयर्स की फॉर्म में खरीद ले, डिवेंचर्स की फॉर्म में खरीद ले, या किसी भी बैंक से लोन ले आए किसी भी इंटरेस्ट पर उठाकर, और वो पैसा लाकर कंपनी को दे दे। उसका पहले इतना ही काम होता था। हम अब अगर हम पुरानी अप्रोच की बात करें, इनिशियल ईयर्स में ऐसा होता था। बट फिर ये रियलाइज किया गया कि नहीं, अगर सिर्फ फाइनेंस मैनेजर का काम पैसा लाना ही है, कई बार होता है कि वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा लेकर आ गया, इतना हमारा अर्निंग ही नहीं हो पाएगा, प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा। तो उसका जो रोल है, एक फाइनेंस मैनेजर का रोल, अब मॉडर्न व्यू पॉइंट से थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स में आप देख रहे हैं। According to the modern viewpoint, not only the collection of the funds but also their proper utilization are the basic functions of the financial man। मतलब उसका रोल थोड़ा और ब्रॉड कर दिया गया और ज्यादा बढ़ा दिया गया कि आपको पैसा तो लेकर आना ही है, लेकिन उस पैसे को प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कंपनी में हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है, या जितना ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सकता है, वो सारे काम भी फाइनेंस मैनेजर को करने हैं। ठीक है। सो फाइनेंस मैनेजर हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ बिजनेस, यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा किसी भी एक बिजनेस में। आज के टाइम में एक फाइनेंस मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, क्रूशियल रोल होता है कि वो पैसा लेकर भी आता है, फिर वो ये भी देखता है एक एक एक्टिविटी में कहाँ पैसा बच सकता है, कोई और डिपार्टमेंट का पर्सन एक्स्ट्रा कहीं पर कोई चीज महंगी तो नहीं खरीद रहा जो कि सस्ते में शायद मार्केट से और कहीं से मिल सकती है। मतलब जहां से भी पैसा बच सकता है वो बचाने का काम भी फाइनेंस मैनेजर का ही होता है आज के टाइम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। ही एस्टिमेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स, पहले तो वो ये भी एस्टिमेट करता है, ये अंदाजा भी लगाता है कि कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए होगा, चाहिए है, कब चाहिए है, किस इंटरवल पे चाहिए, किस टाइम पीरियड पे चाहिए, और कितना। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी का सैलरीज पे करने का टाइम सपोज 10th है या 7th ऑफ एवरी मंथ है, तो फिर उसको ये देखना है कि अच्छा उसको 7th से पहले इतना एस्टिमेटेड अमाउंट है फॉर सैलरीज ही हैज टू अरेंज। ठीक है। या फिर सपोज कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है या कोई और बिल पे करना है और कंपनी का, तो वो किस टाइम पर पे होता है, उस टाइम पीरियड से पहले पहले उसको उतना पैसा अरेंज करना है। दैट इज व्हाट इट इज कि ही हैज टू एस्टिमेट, उसको एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि कब कितने पैसे की जरूरत होगी, उस टाइम पर उतना पैसा अवेलेबल हो कंपनी के पास, चाहे किसी भी सोर्स से हो। ये काम फाइनेंस मैनेजर का है। उसको ये देखना है कि कैसे फंड्स वो अरेंज कर सकता है विद इन टाइम, अदरवाइज लेट चार्जेस हो जाएंगे, सैलरीज लेट नहीं हो सकती हैं, बिल्स अगर कोई और बिल्स पेमेंट्स हैं वो अगर डिले करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे, दैट विल अगेन बी अ लॉस टू द कंपनी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग जाता है या कुछ और फाइन्स हो जाते हैं अगर हम लेट पेमेंट्स करते हैं। ये हमारे पर्सनल लाइफ में भी होता है, राइट। तो ये ऑफिशियल लाइफ में भी होता है कि फाइनेंस मैनेजर को ये भी देखना है कि विद इन टाइम अगर वो काम करेगा तो शायद वो काम कम कॉस्ट में हो जाए, अगर वो टाइम्स के बाद वो काम कर रहा है तो कंपनी को लॉस है, तो देन ही इज नॉट अ गुड फाइनेंस मैनेजर। सो he has to estimate the requirements of the funds, plans from different sources of funds, and performs the function of the collection of the funds and their effective utilization भी effective होना चाहिए। effective का मतलब मिनिमम लॉस पर कि उससे कम लॉस पर ये काम हो ही नहीं सकता, इतना पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा इस चीज के लिए, उस
उस कॉस्ट पर वो कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो पैसे का, वो फाइनेंस मैनेजर को कंट्रोल करना पड़ता है. एज ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज लाइक मार्केटिंग, परचेज, प्रोडक्शन, ठीक है, कुछ कोई भी रिलेटेड फंक्शन है, चाहे मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, परचेज का अलग एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का अलग, हर डिपार्टमेंट का एक हेड भी होता है, मे बी मैनेजर भी होता है. लेकिन जब भी कभी वो डिपार्टमेंट फंड्स आई मीन करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो वो फाइनेंस मैनेजर की कंसल्टेशन में करेंगे ये चीज. Vineet has also joined us. Okay, got this point? So all the business activities like marketing, purchase, production, etc. include the creation and utilization of funds. Finance manager must be clear about his duties and responsibilities. उसको पता होना चाहिए कि marketing के लिए इतना पैसा, of course अगर एक budget करा है marketing manager ने कि मैं एक साल में अपने department पे या marketing में 1 करोड़ रुपया खर्च करूंगा, तो वो कब किस टाइम पर marketing manager को उसने देना है, और मार्केटिंग मैनेजर भी उसकी कंसल्टेशन में रहेगा, so that things can be performed well and finance can be managed in the most effective manner. ठीक है, इज दिस क्लियर? मीनिंग समझ आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, और बेसिक रोल एक फाइनेंस मैनेजर का क्या है. आर वी ऑल क्लियर विद दिस? गिव मी कॉन्फर्मेशन प्लीज. यस मैम. ग्रेट. किसी को इस चीज के लिए कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कुछ माइंड में कुछ लग रहा है कि आपको पूछना है, तो प्लीज लेट मी नो. शुड आई प्रोसीड फर्दर? आगे चलूं मैं? यस मैम. ओके, just click the attendance also. Okay, so the next point is the nature of the financial management. Nature of financial management क्या है? Nature of the financial management, there these are all further steps. What I will advise you guys is कि आप जो ये points हैं, जो मैंने points लिखे हैं, इन points की headings को तो एटलीस्ट आप लोग learn कर लीजिएगा. एंड जब भी आप एग्जाम्स में आप मेंशन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स को आप हाईलाइट करेंगे, और इसकी एक्सप्लेनेशन आप जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही लैंग्वेज लिखें जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में खुद भी बनाकर इनका मीनिंग आप एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं, लेकिन ट्राई टू पुट द सेम पॉइंट्स एज द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फर्स्ट इज नेचर क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? एस्टिमेट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. कैपिटल कितना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए. हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कंपनी चल रही है, लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है, उस प्रोजेक्ट में कुछ पैसा लगाने के लिए आपको इनिशियली कुछ चाहिए, तो उसकी कॉस्ट के लिए, मतलब दैट इज ऑल कैपिटल. कैपिटल बेसिकली इज दी एक तरीके से आउटस्टैंडिंग या लायबिलिटी होती है कंपनी की. हम कैपिटल, पैसा तो मार्केट से हम ले लेते हैं, लेकिन हमें किसी ना किसी कॉस्ट पे वो पैसा मिलता है. वो पैसा हमारा नहीं है. हमें पैसा का तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या शेयर होल्डर्स हैं तो उनको डिविडेंड पे करना पड़ता है, डिबेंचर्स पर भी हमको डिविडेंड पे करना पड़ता है, या व्हाटएवर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो वो पैसा एक कॉस्ट से आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कुछ पैसा बोरो कर रहे हैं और आपके पास वो 10,000 रुपीज है, और एक है कि आपके पास 10,000 रुपीज आपकी सैलरी का अमाउंट है, तो दोनों पैसे तो हैं आपके पास, फाइनेंस तो है, फंड्स तो हैं, लेकिन एक आपका एसेट है और दूसरा आपकी लायबिलिटी है. आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हो गई कि कैपिटल फंड्स कहाँ से आएंगे. वो फंड्स अगर आप मार्केट से किसी से उधार पैसा ले रहे हैं, यानी कि आपको पैसा तो वापस करना ही है जो आपने लिया है, और आप उसका पर मंथ या क्वार्टरली या एनुअली जो भी हमारा एग्री होता है, हमें उसके बेस पर वो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है. तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करना कि क्या क्या कितने फंड की जरूरत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नेचर हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. which helps in anticipation of the funds required for running the business. मतलब ये anticipate करें कि कितना पैसा चाहिए बिजनेस को चलता रहने देने के लिए. अगर इतना पैसा एक मंथ में भी ऐसा हो जाए कि किसी भी एम्प्लॉइज की सैलरी सपोज हम ना, कंपनी ना दे पाए, तो बिजनेस तो चल ही नहीं सकता. या कुछ और भी काम जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है वो नहीं हो पाए मंथली, या ऑन टाइम नहीं हो पाए, टाइमलाइंस को फॉलो नहीं करे, तो शायद बिजनेस चल ही नहीं पाएगा. तो एस्टिमेट करना कि हमारे क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बेसिक फंक्शन हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. फाइनेंस मैनेजर प्रिपेयर करता है एक बजट फॉर ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, के कहाँ कहाँ उसके खर्चे होने हैं और कहाँ कहाँ से उसके पास पैसा आना है. अगर उसके पास ये दोनों चीजों का लिस्ट होगा कि इतने मेरे खर्चे हैं, इतना यहाँ से इनकम आना है, तो वो इनकम को और ज्यादा पहले लेने की कोशिश करेगा एक्सपेंसेस से पहले. वो सोचेगा कि रादर कि मैं मार्केट से पैसा किसी से उधार लूं, जो मेरा ही पैसा आने वाला मैं उसको मंगा लूं और मैं एक्सपेंसेस उसी से करूं.
यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल किसी को हमने कोई प्रोडक्ट बेचा है, उधार पर बेच दिया, और वो पैसा हमें क्लाइंट से लेना है, तो रादर कि मैं मार्केट से पैसा उठाऊं, कोई अपने शेयर्स बेचूं या बैंक से लोन लूं, इससे अच्छा है कि मैं उन कस्टमर्स को बोलूं कि आप मेरा पैसा वापस करो, ताकि जो मेरे एक्सपेंसेस होने वाले हैं मैं उस पैसे से वो एक्सपेंसेस करूं। तो ये फाइनेंस मैनेजर का काम हो गया। वो प्रॉपर बजट तैयार करता है हर चीज का, कि मेरे खर्चे क्या है, रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से पैसा मेरे पास आना है और कहाँ जाना है, इसका वो प्रॉपर हिसाब रखता है, और फिर वो एस्टिमेट करता है कि कितना पैसा मुझे चाहिए। डिसाइड्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अब उसने कैपिटल रिक्वायरमेंट तो एस्टिमेट कर लिया कि मुझे सपोज 10 करोड़ रुपया चाहिए या 2 करोड़ रुपया चाहिए या व्हाटएवर चाहिए। अब उस पैसे को मार्केट से उठाना किस किस फॉर्म में है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब कि क्या मैं बैंक के पास जाऊंगा लोन लेने के लिए, या मुझे बैंक से लोन मिल भी जाएगा उतना जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कम ही मिले, तो क्या फिर मैं बॉन्ड्स खरीदूंगा मार्केट में जाके, या मैं अपने इक्विटी शेयर्स बेचूंगा, या मैं डिबेंचर्स बेचूंगा, या मैं क्या ऐसा करूंगा। मतलब एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है उसको उस पैसे का, कि सपोज 10 करोड़ रुपया आया है तो 5 करोड़ शायद मुझे बैंक से मिल जाएगा, 3 करोड़ के शायद मैं शेयर्स बेच लूंगा, 2 करोड़ के शायद मैं डिबेंचर्स बेच लूंगा। सो दैट बिकम्स द कैपिटल स्ट्रक्चर। किस किस फॉर्म में हमारे पास वो कैपिटल है। गॉट दिस पॉइंट? कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड करता है एक फाइनेंस मैनेजर। तो दिस आल्सो बिकम्स वन ऑफ द नेचर्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Now he selects the sources of funds. Sources of funds are choosing the sources of fund is, ये बहुत important. Again, this is more or less the same thing. More or less, this is the same thing. But structure is different than that of the sources. There are so many sources. Sources are like financial institutions भी होते हैं, कोई और venture capital हो गया। venture capital क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, और आपके पास, मेरे पास लेकिन पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो मैंने एक आइडिया किसी एक ऐसे पर्सन को सुनाया कि ये बिजनेस मैं करना चाहती हूँ, और उस पर्सन के पास पैसा बहुत पड़ा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे को पैसे कहाँ पे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो पर्सन ये कहता है कि मैं पैसा लगाता हूँ, तुम काम करो। दैट बिकम्स वेंचर कैपिटल। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स, कुछ पुराने साल की अगर अर्निंग्स हमारे पास पड़ी है, उसमें से कुछ पैसा हमने फंड करना है, या खुद ही जो ओनर है वो कुछ अपने पॉकेट से पैसा लगाना चाहता है बिजनेस में, या जो भी कोई सोर्स ऑफ फंड रहेगा वो एनालाइज करना कि क्या क्या फंड्स है उनके पास। ठीक है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज सिलेक्ट्स इन्वेस्टमेंट पैटर्न। जब एक बार ये क्लोज हो गया कि कौन कौन से सोर्सेज से हमें फंड लेने हैं और क्या क्या हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बाद हम रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न मतलब कि कितना पैसा तो हम बिल्कुल कैश में रखेंगे, कितना पैसा है कि हम अपने बैंक में रखेंगे, चेक्स के थ्रू हम फॉर्म में वो पैसा यूज कर सकते हैं। मतलब ये पैटर्न हो गया कि कुछ पैसा तो हमें लिक्विड कैश भी रखना पड़ता है, कुछ है कि बिल्कुल कैश के बिना छोटे मोटे काम जो होते हैं, खर्चे होते हैं जो कंपनी के, वो हो ही नहीं पाते। तो वो भी फाइनेंस मैनेजर को ये एनालाइज करना है कि भाई मुझे कितना पैसा लिक्विड में रखना है, क्या मेरा 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से अगर मैं कैश रखता हूँ तो उससे हो जाएगा, या मुझे 2 लाख रुपए चाहिए रहेगा, या 5 लाख रुपए चाहिए रहेगा, और बैंक में मैं कितना रखूं। ठीक है। रेजिस शेयर होल्डर्स वैल्यू। अच्छा, अब शेयर होल्डर्स वैल्यू को रेज करना इज वन ऑफ द नेचर। ये इसका क्या मतलब होता है कि सपोज रिलायंस की मैं अगर बात करूं, एनी इश्यूज गाइस? No, ma'am. ओके। सो शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है उसको कैसे रेज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक शेयर बेचा एक कंपनी ने, जब कंपनी स्टार्ट की है, शेयर जब उसने अपना अलॉट करना शुरू किया मार्केट में, तो 10 रुपीज का सपोज एक शेयर बेचा था। तो शेयर होल्डर्स को क्या फायदा हो रहा है कि वो अपना पैसा आपकी कंपनी में लगा के रखें एंड नॉट इन दी अदर कंपनी। सपोज उनको कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा, कोई कंपनी हमारी अगर प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है, उनको कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा, उनकी शेयर वैल्यू भी नहीं मार्केट में बढ़ रही है, तो वो अपना पैसा हमारे पास लगाकर क्या करेंगे, वो मार्केट में ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर पैसा उनको ज्यादा मिल रहा है, रिटर्न्स उनको अपने शेयर का वैल्यू भी बढ़ता हुआ मिल रहा है, प्लस उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी उस पर अच्छा मिल रहा है। तो एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर का एक ये भी रोल होता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स की भी वैल्यू रखे। जैसे कि मार्केट में अब हम रिलायंस की अगर बात करें, हर कोई पर्सन रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि अंबानी जो है ही ऑलवेज फोकस ऑन द प्रॉफिट। वो मैक्सिमाइज करते हैं अपना प्रॉफिट, किस टाइम पर कब
कहाँ से कैसा कितना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ये उनका मेन फोकस रहता है। तो हर आदमी अपना पैसा, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है भी जो कि वो बैंक में नहीं रखना चाहता, तो लोग ज्यादातर पैसा रिलायंस में शेयर एज अ शेयर होल्डर या उनके म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी तरीके से उसमें लगाना चाहते हैं और करते भी हैं काम। तो हम एज अ स्मॉल कंपनी या किसी भी कंपनी में हमें, तो हम क्या कर रहे हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर कि हमारे शेयर होल्डर्स हमारे लिए हम उनके लिए क्या कर रहे हैं कि उनका शेयर वैल्यू भी बढ़े और उनको रिटर्न्स भी अच्छे मिले हम, ताकि वो हमारे साथ रहकर काम करें। मैनेजमेंट ऑफ कैश, नाउ कैश जो होता है इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। अगर कोई कैशियर भी है, सपोज ए कैशियर को हमने अलॉट भी कर दिया, उसका ये काम है कि वो सारा दिन पूरा सारी एक्टिविटीज जो भी कैश की है वो मॉनिटर करेगा, पैसे का हिसाब भी रखेगा, इतना खर्चा हुआ, इतना पैसा मिला, इतना बच गया, जो भी कैश का इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ, सारा कुछ हिसाब रखने का काम एक कैशियर का तो होता है। बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस मैनेजर की होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर 2000 रुपीज भी कैश में देना है किसी एक्सपेंस की वजह से, छोटा सा कोई एक्सपेंस हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो अप्रूवल फाइनेंस मैनेजर करेगा। वो देखेगा कि इतना पैसा इस चीज के लिए ठीक भी है देना, कैशियर को अथॉरिटी नहीं होगी, कैशियर सिर्फ वही पैसा देगा या बैंक से कुछ पैसा आएगा तो रखेगा भी जो फाइनेंस मैनेजर उसको कहेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश जो कंपनीज में हो रहा है वो भी फाइनेंस मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने अंडर कैशियर को रख के ये काम करवाता है। ठीक है। सो फाइनेंस मैनेजर्स सुपरवाइज ऑल द कैश मूवमेंट्स, जो आप आई थिंक 6th पॉइंट है मैनेजमेंट, आई एम ऑन द 6th पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ कैश। Finance managers supervise all the cash movements through proper accounting of all the cash inflows and outflows. और सिर्फ ये नहीं कि हम लोग पैसा देना और लेना कर रहे हैं और एक रजिस्टर में हमने एंट्री कर दिया, इतना पैसा आया इतना पैसा गया। नो, कल को किसी को आपने पैसा दिया, उसने बोला इसने तो मुझे पैसा दिया ही नहीं, फिर क्या करोगे? तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी रखना, हर एक छोटी से छोटी एंट्री का प्रॉपर एक वाउचर बनाना। अगर आप कैश दे रहे हो तो उस पर्सन को जिसको दे रहे हो उससे साइन लेना कि हाँ ठीक है तुम इतना पैसा इस डेट में, आज की डेट में इस काम के लिए दिया, राइट। फिर वो एक तो वो वाउचर बनाना हो गया, सिग्नेचर्स हो गया, उसके बाद ये सारी चीजों के अकाउंट्स मेंटेन करना, प्रॉपर एंट्रीज भी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अब कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ कंपनीज टेली में काम करती हैं, कुछ कंपनीज और दूसरे सॉफ्टवेयर्स में काम करती हैं जिसमें कि इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो भी कैश का हो रहा है उनकी एंट्रीज भी कैशियर कर तो देता है, बट फाइनेंस मैनेजर ही चेक करेगा उसने एंट्री ठीक करी है कि नहीं करी है। कुछ चीज डेबिट करनी है, कुछ चीज क्रेडिट करनी है, वो ठीक से वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अकाउंट्स प्रॉपर मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दिस इज ऑल, ये सभी कुछ जो है फाइनेंस मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली है। वो ये सब अकाउंट्स भी चेक करे कि जो कैश इनफ्लो हुआ, इनफ्लो मतलब जो कैश आया बिजनेस में, आउटफ्लो यानी कि कुछ भी खर्चों की वजह से वो कोई भी पैसा बाहर गया, दैट इज आउटफ्लो। हर चीज का रिकॉर्ड वही रखेगा। ठीक है। अप्लाई फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अच्छा, अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अप्लाई फाइनेंशियल कंट्रोल से क्या समझते हैं? इम्प्लाइंग फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन बिजनेस इज अ बेनिफिशियल रोल प्लेड बाय द फाइनेंस मैनेजर। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक छोटा सा सपोज बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको लेके समझा रही हूँ कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सपोज एक डिपार्टमेंट का एसी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एसी ठीक करवाना, रिपेयर करवाना, सर्विस करवाना एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर का काम है। एडमिन मैनेजर अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है। अब कौन सा एसी, या तो न्यू एसी स्टैब्लिश होगा या उस पर्टिकुलर एसी की रिपेयरमेंट होगी, तो वो जो भी चीज हो रहा है उसमें जो भी पैसा लग रहा है, एडमिन मैनेजर ने लाकर बोल दिया फाइनेंस मैनेजर को इतना पैसा लग रहा है, दिस इज द एसी, मैंने फाइनलाइज कर लिया, 50,000 रुपया चाहिए मुझे इसके लिए। नाउ फाइनेंस मैनेजर का वहां पर जो कंट्रोल वाला जो पॉइंट है, फाइनेंशियल कंट्रोल वाला पॉइंट है, यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, वो मार्केट में खुद अपनी सोर्स से चेक करेगा क्या 50,000 रुपए वाली। I'm sorry guys, am I audible? Hello everyone. Yes, ma'am. आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं ये आ फाइनल रही है। कड़क आ रही है मैम। थोड़ा सा अनस्टेबल है। आवाज ऑडियो क्लियर नहीं है। एक मिनट वेट करते बेटा, एक मिनट वेट करते बेटा, अनस्टेबल है मेरा कनेक्शन, एक मिनट रुकिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अभी तक ठीक चल रही है, कट 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 कट। कुछ नहीं भाई, कोई नहीं, दिक्कत आती है। क्या कह रहा है? आती है, सबको आती है। कंसंट्रेट करो
पढ़ पढ़ाई पे। और ऑडियो क्लियर नहीं है। बेटा अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी। कुछ बोल ही नहीं रही मैडम। अभी आ रही है आवाज मेरी क्लियर आपको? हाँ मैम आ रही है पूरी आ रही है। कंटिन्यू। मैम 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 माइक ऑन तो कर लो। आधा घंटा चल लिया बहुत है क्लास। हेलो हेलो मैम नहीं संजय बोलते कुछ मैम। संजय अरे भाई तो संजय संजय क्यों बोल रहा है? Is it audible now? नो मैम नहीं आ रही है आवाज? मुझे तो आप लोगों की आ बिल्कुल गई क्लियर आ रही मैम है। आ गई ओके ये मैम आ रही है कंटिन्यू। मैं प्रोसीड करूं फिर आगे? मैम आप लेक्चर डिसमिस कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी अगर अब आवाज इश्यू हो रही है तो। ठीक है तो मैं फाइनल पॉइंट पर थी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल यस मैम बिजनेस। कल कंटिन्यू कर लेंगे। कल कंटिन्यू कर लेंगे। मैम कंटिन्यू से डिसकंटिन्यू कैसा है वो? बेटा अभी तो भाई टाइम मैम भी को नहीं हुआ बोलने ज्यादा। तो अच्छा मुझे नेचर कंप्लीट करने दो, उसके बाद रखते हैं, ठीक है? ये लास्ट पॉइंट है जो नेचर एंड मीनिंग हम लोगों ने अभी कर लिया है। तो हम जो कल मॉर्निंग में फिर करेंगे 9 o'clock, वो हम लोग फिर फर्दर इसके आगे से कभी स्टार्ट कभी करेंगे। आपके बाद प्रॉपर आती है फिर उसके बाद अटक जाती है। कट रही है। ऐसा क्यों? हाँ कभी कभी तो प्रॉपर आ जाती है कभी कभी अटक जाती है। अभी भी नहीं आ रही है? कल कंटिन्यू कर लेंगे क्लास। अभी तो कंटिन्यू भाई कोई नहीं पढ़ाने दे तो मैडम कोई भगा रहा है। इज इट ऑडिबल? धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया यार। हेलो यस मैम ओके सो नेचर इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। नेचर ऑफ फाइनेंशियल बोलो मैनेजमेंट। यार कट रही है आपकी कट रही है। वो मिल यार धोनी मैं क्या ने कह रहा हूँ? रिटायरमेंट दुख हो रहा है मुझे। अनस्टेबल है थोड़ा इंटरनेट, आई थिंक। डोंट क्या क्या है यहाँ फाइनेंस चल रहा है तो क्रिकेट चल रहा था। है भाई क्या बात कर रहे हो आप लोग? हेलो उधर हाँ भाई। किस चीज का क्लाइमेक्स चल रहा है? भाई इशू मैम क्या सॉल्व कर रहे कर हो भाई। आप? पढ़ाओ मैम। क्या कह रहे हो? आई एम सेइंग ये इररिलेवेंट मैम बातें उदय है क्यों हो मैम रही हैं? उदय को कंप्यूटर की नॉलेज बहुत है उदय से पूछो। यस मैम मुझे ना ये लेक्चर में अननेसेसरी यू आर नॉट आर्ग्यूमेंट्स, ये ऑडिबल। सब कमेंट्स नहीं चाहिए। मैम क्या बिल्कुल मैम सही जनरल कह रहे हो। मैम आप टाइप कर दो मैम हम समझ लेंगे।
हाँ जी मैम। मैम टाइप कर दो आप। We will continue this lecture from like the next very slide. हम लोग कल मॉर्निंग में इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ओके? आप टाइप कर सकते हैं। हेलो, ओके मॉर्निंग में मैम कितने बजे मैम? कल मॉर्निंग 9 o'clock ही होगा हमारा सेशन, ठीक है? मैं आपको रिक्वेस्ट भेजती हूँ, 9 o'clock वाला रिक्वेस्ट मैं आपको भेजती हूँ। मैम 9 o'clock भी आज हुई थी मैम, फिर आज फिर इश्यू हो गया था। कोई बात नहीं, अब कल वो तो तो ऐसा नहीं होगा नहीं, जो फिर दोबारा टाइम है इश्यू हो जाए। देखो वही, अब इंटरनेट का तो खैर किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, बट होपफुली नहीं होगा मॉर्निंग में कल कुछ ऐसा। हमारा टाइम वही है, तो हम लोग मॉर्निंग में 9 o'clock ही कनेक्ट करते हैं। अगर कुछ इशू होगा तो देन वी विल अगेन सी, या तो कल ही करेंगे या मे बी सैटरडे भी कर सकते हैं, संडे भी कर सकते हैं, जैसे भी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है? तो अभी आई एम पुटिंग इट फॉर नाउ, वी विल मैम आप स्कूल कंटिन्यू। कॉलेज में हो? कॉलेज में सॉरी, मैम आप कॉलेज से पढ़ाते हो? कॉलेज हाँ, में जाके? कॉलेज से पढ़ाती हूँ मतलब? अरे मैम जब भी तो दिक्कत है कॉलेज की। मैम कॉलेज में तो दिक्कत है अभी तो, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं जब भी बोल नहीं रहा हूँ मैं, आती देखो मैम ये आवाज। इंटरनेट, ठीक है? अभी फिर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रही हूँ आगे, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके मैम, हैव अ नाइस डे। ओके मैम। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन, बाय बाय।